Hello everyone. First of all, thanks for being here in my YouTube channel. So, my dear students, uh, this is my second lecture for chapter number 13, surface area and volume. And from today onwards, I will start from question number 9. So, before starting the question number 9, I have to tell the concept behind the question number 5. Understand? तो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Question number 5 says a hemispherical ball. Now in this question, a hemisphere is used. So first of all, before starting this question, I will tell some formulas related to sphere and hemisphere, right? And one important fact behind the hemisphere, right? Okay. First of all, sphere. Sphere. The volume of sphere is 4/3 pi r cube. Cubic centimeter na, because we will find the volume here. Remember, in sphere there is no curved surface and total surface. There is only one which is known as surface area, and surface area is referred as total surface area, right? There is no curved surface, there is no total surface, there is only one surface, means surface area. So surface area, or we will say it as TSA, or keep it as surface area, right? Surface area of a sphere. Surface area of a sphere gives 4 pi r square. Okay. A sphere is just like a ball, like cricket ball. Cricket ball is also like a sphere, right? I have a cricket ball. No. Right now I don't have a cricket ball. Second is hemisphere. Yeah, hemisphere is just like a नारियल. When we cut a नारियल into two halves, तो जो नारियल की जो white वाली गिरी होती है, just shaped like that, shaped is called as a hemisphere. Or when we cut a cricket ball, the jumper ball, into two halves, then we get a hemisphere, just like this. Okay, this will be the radius. This is our radius. And remember one important fact in the hemisphere. ये जो सर्कुलर सरफेस होता है ना हमारा बेटा, ये तो हमारा रेडियस होता ही होता है. ओके. इवन अगर मैं इस सर्कुलर सरफेस के सेंटर से इधर भी इसके सरफेस पे एक लाइन बनाता हूं, तो ये भी हमारी एक क्या होती है, रेडियस. एंड रिमेंबर, समटाइम्स दिस रेडियस is also referred as the height of hemisphere in some cases. फिर से ये जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर सरफेस होता है, इसके सेंटर से जब हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके सरकमफेरेंस पर, तो वो तो रेडियस होती ही होती है. ऑन द अदर हैंड, जब मैं इसके सेंटर से इस हेमिस्फीयर के सरकमफेरेंस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वो भी एक क्या होती है, मेरी रेडियस. लेकिन इन सम केसेस this radius is referred as height of the hemisphere in some cases, है ना. क्वेश्चन आएगा, हम समझेंगे. So the volume of hemisphere is just half it, we get 2/3 pi r cube. But in hemisphere there is a curved surface and total surface. The CSA of hemisphere is 2 pi r square and TSA is 3 pi r square. इसको याद रखने का टेक्निक देखो, वॉल्यूम में जो होता है स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब.
एरिया में हमारा आर स्क्वायर आ गया। एरिया क्योंकि दो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से मिलके बनता है, तो आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे 4 है न्यूमरेटर में, तो इधर 4 आ गया। इस तरीके से हम टेक्निकली फॉर्मूले को समझ सकते हैं ना। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो एरिया में तो आर स्क्वायर आएगा ही आएगा, राइट। क्योंकि 2 उसके न्यूमरेटर में, तो कर्व सरफेस में 2 पाई आर स्क्वायर लग गया। अगर मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर विच इज टोटल सरफेस एरिया, ये है ना। तो इसी टेक्निक से हम इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। ओके, नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। अब एक तरीके से हमारे सारे फॉर्मूलेस हो गए हैं। अगर कोई बचेगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 says a hemispherical bowl. A bowl is a type of hemisphere. A hemispherical bowl. This is my radius. Is filled to the brim with a beverage. एक हेमिस्फेरिकल बोल, बेवरेज मीन्स कोल्ड ड्रिंक से पूरा ऊपर तक टॉप तक भरी हुई है। द कंटेंट्स ऑफ द बोल आर ट्रांसफर्ड इनटू द, कंटेंट्स मीन्स इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको किस में ट्रांसफर किया गया, उसको ट्रांसफर करा गया एक सिलेंडर में, एक सिलेंड्रिकल वेसल में, इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल हुज रेडियस। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है ना बेटे, द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 50% मोर देन इट्स हाइट। इस सिलेंड्रिकल बेस की जो रेडियस है, अब इस रेडियस के बारे में बात ये कह रहा है कि रेडियस किसकी, इस सिलेंडर की, वो 50% उसकी हाइट से ज्यादा है। इसका मतलब 50% ज्यादा है उसकी हाइट से। तो जब मैं इसकी हाइट में से मैंने h मान ली, तो जब मैं h का 50% निकालूंगा तो उस 50% को मुझे उस h में जब मैं ऐड करूंगा तो पूरा मिला के मेरे पास क्या आएगा, रेडियस बढ़ती हुई आएगी। एक बार फिर से, जब मैं सबसे पहले रेडियस फाइंड करने के लिए हाइट का 50% निकालूंगा विच इज h/2, ठीक है। अब इस h/2 में फाइनल रेडियस निकालने के लिए जब मैं हाइट में इसका 50% ऐड करूंगा तभी तो मेरे पे रेडियस इंक्रीज्ड वे में आएगी, विच इज 3h/2। क्योंकि अगर मैं मान लो खाली r इक्वल टू, समझने वाली बात है ये, अगर मैं r इक्वल टू h/2 रख दूं तो r क्या, ये सिर्फ क्या हो जाएगा मालूम है, आप सिर्फ रेडियस का हाइट का 50% पार्ट लिख रहे हो। लेकिन क्योंकि मुझे मोर बढ़वा के दिखाना है तो मुझे इसमें ओरिजिनल हाइट को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं ना। चलो, तो रेडियस हमारे पास आ गई 3h/2। अब इसके बाद एक बात कह रहा है, द डायमीटर इज सेम फॉर बोथ द बाउल एंड सिलेंडर। मीन्स इसका जो डायमीटर है d, इट इज ऑल्सो सेम एज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। मीन्स इसकी रेडियस भी आपकी इक्वल होगी, मतलब जो रेडियस का रिलेशन ये वाला है 3h/2, वही 3h/2 हमारा हेमिस्फीयर के लिए होगा। ओके, देन द अमाउंट ऑफ द बेवरेज दैट कैन बी पोर्ड फ्रॉम बोल टू सिलेंडर इज। अब आपसे कह रहा है कि जब इस हेमिस्फेरिकल बोल से लिक्विड इसमें पोर किया गया पूरा, तो वो कितना परसेंट था, चेक करते हैं। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। एक चीज हमें और समझ में आ गई है कि द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना होगा बेटे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर मैं निकालूं तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई को भी रखा रहने देते हैं यहाँ पे, है ना। आर यहाँ पे क्या है, देखो दोनों का डायमीटर सेम है एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ओके, तो अगर डायमीटर सेम है डेट मीन्स इनका रेडियस भी सेम होगा। ओके,
तो रेडियस हमारी क्या है, एक सिलेंडर की निकली है 3h/2, जो कि फाइनल रिलेशन था। तो अगर 3h/2 हमारा सिलेंडर का रेडियस है तो 3h/2 हमारा हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा, 3h/2 का होल क्यूब। बस यही चीज में समझने वाली होती है ना। तो हमारा कितना आया, 2/3, 27h³/28 इंटू पाई। तो 2 4 आए 327, 9h/4 पाई। ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अभी क्या कह रहा है? अच्छा, एक बात है, अगर पूरा लिक्विड इसमें डालेंगे तो आपसे ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कितना अमाउंट इसके अंदर आया। तो एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही होगा। चलो देखते हैं, एक बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। रेडियस क्या है इसकी, 3h/2 इंटू h। h तो हमारी h है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 9h³/4, 9h³/4 पाई। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो फर्स्ट और सेकंड से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज हमारी सेम है। इसका मतलब जितना लिक्विड का अमाउंट इसमें था, जब मैं इसको इसमें पोर करूंगा तो ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा अप टू द ब्रिम। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 100% अमाउंट आना चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ऑब्जर्व दैट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have observed that 100% of amount will transfer. That means option number C is the right answer. समझने वाली बात है बेटा, जब मैंने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाला 9h³ π/4, तो वो वाली वैल्यू करेक्ट किसके इक्वल आई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, जो कि हमें क्या बताती है कि सेम अमाउंट ऑफ बिवरेज इसी में पोर किया गया सिलेंडर में, तो वो जितना अमाउंट इसमें था वही सेम अमाउंट हमारा सिलेंडर में आया। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि दोनों का अमाउंट सेम है, डेट मीन्स 100% अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, 100%। तो इसीलिए इसका आंसर सी आया, 100%। तो ये एक समझने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। Now we comes to question number 9. This is a very important question and very interesting question. Okay. Question number 9. Question number 9 says the volume of two spheres are in the ratio 64:27. That means दोनों का रेडियस भी हमारा अलग होगा। So volume of first sphere 4/3 πr1³। एग्जाम में आप इसी तरीके से करेंगे ना, टाइम बचाने के लिए। 4/3 πr2³। तो 4/3 दोनों में पाई कॉमन है, कट गया, 64/27। फ्रॉम here we can identify the radius। क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। तो R1 और R2 की वैल्यू हो गई 4/3, ठीक है। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस वो टीएस है ना। तो टीएसए ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या हो जाएगा, 4πr1², सेकंड 4πr2²। अच्छा, एक कंडीशन और है, इफ द सम ऑफ देयर रेडिया इज 7 यूनिट। हाँ, दोनों रेडिया का सम कितना है, 7। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, जब सिंगल रेडियस की बात चलती है तो हम रेडियस लिखते हैं। when there are more than one radius, when we use more than one radius, then in that case we will use the term radii. Radii is a plural form of
रेडियस। ओके, सो 4, इसमें भी देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 और R2 स्क्वायर हो जाएगा 9। अच्छा हमें डिफरेंस पूछ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ओके 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 ओके, मैंने रेशियो निकाल लिया है, हमें रेशियो निकालना है इसमें, हमें प्यारे बच्चों इसमें डिफरेंस निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4 पाई R1 स्क्वायर, पाई को अभी सॉल्व भी कर रहे हैं, R1 स्क्वायर में 16, 16 को हो जाए 64 पाई, ये फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम आ गया, वो सरफेस एरिया आ गया 4 पाई R2 स्क्वायर 9 है ना 36। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, on first minus second we get to 64 pi minus 36 pi 28 pi square units, which is option number A. Question number 10. The radii of two cylinders are in the ratio 2:3. The heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volumes. ये तो बहुत इजी है। Volume of cylinder pi R1 square H1 pi R2 square H2. This is the ratio of the two volumes of different cylinders. R1 square means 4 into 5, 9 into 3, 20 upon 27 means 20 ratio 27. Option number B. इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से बनना है वो हम सीख रहे हैं ना। हमें दो सिलेंडर्स की रेडियाई का रेशियो गिवन था, उन्हीं दो सिलेंडर्स की हाइट्स का रेशियो हमें गिवन था, हमें उनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना था। ठीक है, तो आसान है ऐसा करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ट्राई टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नॉट टू लर्न द सॉल्यूशन, हाउ टू फॉर्म द सॉल्यूशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैथमेटिक्स। Now we comes to question number 11. Before starting the question number 11, I am explaining one very important concept for open box and closed box. Open box and closed box. बेटा इसके लिए आपको अपने पास एक जूते का डिब्बा सोचना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा वुडन बॉक्स से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, वुड से, है ना। देखो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सपोज मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल और लगा दिया, ओके, सच दैट कि इसका ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस सेम है। अगर ये थिकनेस हमारी 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी थिकनेस 2 सेंटीमीटर का है, ये भी थिकनेस 2 एंड सेम एज 2 सेंटीमीटर। तो मैंने कह ली ये मेरी टी है, थिकनेस सेम, ओके।
This is my rectangle ABCD and this is my rectangle PQR and S. The length of this rectangle is capital L and the length of this small rectangle is small l. The breadth of this capital rectangle is B यूज हो चुका है. Suppose small b, अबे small b है ना, and the breadth of this small rectangle is b1. ये सपोज करना ये एक शू बॉक्स का बेस है जो कि रेक्टेंगल शेप में है और ये जो गैप है ना ये वुड है हमारी, उस वुड से ये बना हुआ है. आपके पास मिल जाएगा जूते का डिब्बा, मेरे पास अभी है नहीं है यहाँ पे, अभी मेरे पास है नहीं है वो, तो मैं आपको दिखा देता. सपोज ऊपर से वो खुला हुआ है, ऊपर उसके ढक्कन नहीं है. तो ये जो बड़ी वाली लेंथ है, हम समझ क्या रहे हैं मालूम है कि स्मॉल लेंथ का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इंटरनल डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी, इंटरनल डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बेस. तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो बड़ी वाली लेंथ है ये बन किस किस से मिलकर रही है, किस किस से मिलकर बनी है ये बड़ी वाली लेंथ. तो आंसर है कि सर इसमें एक तो ये छोटा t मिला हुआ है, एक इसमें ये l मिली हुई है, एक इसमें ये फिर से स्मॉल t मिला हुआ है. ठीक है, एक बार फिर से जब मैंने देखा कि ये कैपिटल L जो है बना किस किस से, तो आंसर है ये एक स्मॉल t से मिलकर बना है, एक स्मॉल l और एक स्मॉल t. ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल L इज मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स t, स्मॉल l एंड t. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2t प्लस स्मॉल l. अब अगर मुझे अंदर की लेंथ निकालनी हो ना तो मैं 2t को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा मुझे l माइनस 2 इंटू थिकनेस. ये हो गई मेरी इंटरनल डायमेंशन. इंटरनल डायमेंशन, दिस स्मॉल l डिनोट्स इंटरनल डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बेस. सेम कॉन्सेप्ट इज फॉलोड इन ब्रेथ ऑल्सो. देखो कैसे, ये स्मॉल b किस किस से मिलकर बन रही है, तो आंसर है दिस t, दिस b1 एंड दिस t, b1 एंड t. या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 2t प्लस b1. तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इंटरनल डायमेंशन b माइनस 2t. ठीक है, ये तो रही मेरी इंटरनल डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ. व्हाट अबाउट हाइट. अब तुम सपोज करो जैसे जूते का डिब्बा रखा हुआ है, मान लेना यही है, सपोज करना डस्टर, ऊपर से ये ओपन है, इसके अंदर जूते रखे जाते हैं वो वाला डिब्बा. तो इसकी हाइट के नीचे भी तो यहाँ पे थिकनेस होगी, तो आंसर है हाँ होती है. और जब हम उस डिब्बे को बंद कर देते हैं तो वो थिकनेस ऊपर भी आ जाती है ना. तो हाइट के केस में ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना. तो जब आप इंटरनल हाइट निकालते हो, क्या निकालते हो, जब आप इंटरनल हाइट निकालते हो स्मॉल h, तो उस कंडीशन में थिकनेस खाली नीचे वाला ऐड होता है, नीचे वाला कंसीडर होता है, ना कि ऊपर वाला. क्यों, क्योंकि ऊपर वाला तो डिब्बा खुला हुआ है. तो h जो होगा यहाँ पे वो होगा कैपिटल H माइनस t. ये ओपन के लिए है. ये आपकी मैंने इंटरनल डायमेंशंस निकाली है बेटा, इंटरनल डायमेंशंस. अब जब मैं बॉक्स को क्लोज कर दूंगा तो उस कंडीशन में अंदर की जो लेंथ रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, ब्रेथ रहेगी वो भी सेम रहेगी, लेकिन जो हाइट होगी कैपिटल H वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. उसमें अब ऊपर वाली थिकनेस भी आ जाएगी, है ना. तो उस कंडीशन में अच्छा स्मॉल h है, तो ये हो जाएगा हमारा h माइनस 2t. बस ये चेंज होता है इसमें. ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, ओपन बॉक्स एंड क्लोज बॉक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने के लिए रेडी हैं.
क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है हमसे a covered wooden box has the inner measures as, inner measures means internal dimensions as, means small l हमें given है कितनी 115 सेंटीमीटर, स्मॉल ब्रेथ गिवन है हमें 75 सेंटीमीटर एंड स्मॉल हाइट गिवन है हमें। कवर्ड वुडन बॉक्स मीन्स वो डिब्बा ऊपर से बंद है, तो हम क्लोज बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एंड द थिकनेस ऑफ वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। वुड की थिकनेस कितनी गिवन है, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ वुड इज, वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, कि वो जो वुडन बॉक्स है उसमें जो वुड यूज हो रही है, सिर्फ वुड, लकड़ी, उस लकड़ी का वॉल्यूम कितना है। जैसे मेरे पास एक ये चौक बॉक्स है, ये इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लोज वुडन बॉक्स। मुझे ये पता करना है इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड यूज हुआ है, तो मैं एक्सटर्नल डायमेंशन में से इंटरनल डायमेंशन अगर माइनस कर दूंगा, इंटरनल मतलब इसके अंदर वाली, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स मिल जाएगा, मींस वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। पर लेकिन मेरे पास वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन, मतलब इंटरनल डायमेंशंस तो हैं, मेरे पास एक्सटर्नल डायमेंशंस नहीं है। मींस दिस कैपिटल एल, अगर मुझे कैपिटल एल निकालनी है तो मैं 2t को ऐड कर दूंगा, इधर ले जाऊंगा। अगर मुझे ये वाली ब्रेथ निकालनी है, आउटर ब्रेथ, तो मैं इंटरनल ब्रेथ में, इसी तरीके से अगर मुझे एक्सटर्नल हाइट निकालनी है तो मैं इंटरनल हाइट में 2t ऐड कर, मतलब अगर मुझे कैपिटल लेंथ निकालनी है तो इसका दोगुना 5 इसमें ऐड करूंगा तो 120 सेंटीमीटर मिलेगा प्यारे बच्चों। ब्रेथ मुझे, कैपिटल ब्रेथ मिलेगा मुझे 80 सेंटीमीटर एंड कैपिटल हाइट मुझे मिलेगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम में टाइम बचाना है हमें। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन। ठीक है बेटे, तो एक्सटर्नल डायमेंशन मीन्स 120 इंटू 80 इंटू 40 माइनस 115 इंटू 75 इंटू 35। फॉर दिस यू हैव टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 82125 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये एक्सटर्नल डायमेंशन वाले, इंटरनल डायमेंशन वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं बेटा। ठीक है, I hope you have really enjoyed this question. Now we comes to question number 12. Question number 12 says a spherical ball of lead, एक lead की बनी spherical ball है जिसका सेंटीमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर की है। is melted and recast into 3 spherical balls, मतलब इसमें से 3 spherical balls और बनाई गई। इसका सपोज करो रेडियस r है, इसका रेडियस r1, r2 एंड r3। तो इन तीनों बॉल्स के वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर दूं, मैंने सोचा ऐसा, अगर मैं तीनों बॉल्स के वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो वो कंप्लीट वॉल्यूम इस बड़े वाले बॉल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आंसर है हाँ सर। तो रेडियस ऑफ टू ऑफ दीज आर, फर्स्ट इसका 1.5 सेंटीमीटर है, सेकंड का 2 सेंटीमीटर है। देखो इसमें एक वर्ड यूज होता है मैथमेटिक्स में, रेस्पेक्टिवली। अगर किसी को मालूम है तो बहुत बढ़िया, किसी को नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा था रेडियस ऑफ टू ऑफ दीज आर 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो वो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है,
Just suppose there are two persons, me and my friend, and there are two different bicycles of different companies such as Atlas and Hero. Okay, Atlas and Hero. Now I am forming one condition. Me and my friend ride a bicycle of company Atlas and Hero respectively. I again repeat the condition. Me and my friend ride a bicycle of company Atlas and Hero respectively. So the question is, मैं कौन सी कंपनी की बाइसाइकिल चला रहा हूँ? अब रेस्पेक्टिवली जब जुड़ता है ना, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है कोई चीज क्रम में चल रही है. क्रम मीन्स फर्स्ट पर्सन फर्स्ट कंडीशन को डिनोट करेगा, सेकंड पर्सन सेकंड कंडीशन को डिनोट करेगा. तो मैं एटलस की बाइक, फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी थी? एटलस वाली ना. तो फर्स्ट मैं एटलस वाली साइकिल चला रहा हूं और मेरा फ्रेंड हीरो वाली. ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है. तो अगर इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ टू ऑफ दीज आर 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट स्फीयर का रेडियस 1.5 आप लेंगे, सेकंड का लेंगे 2 सेंटीमीटर. ये मतलब होता है मैथ्स में रेस्पेक्टिवली का. ओके, तो आपको थर्ड बॉल का रेडियस फाइंड करना है. तो ठीक है, कर देंगे. कैसे? देखो, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कह सकते हैं इसको, है ना. कैपिटल आर इज इक्वल टू तीनों बॉल्स के वॉल्यूम्स का रेडियस, मींस वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 ऑफ रेडियस r1 ऑफ रेडियस r2. शॉर्ट में लिख दिया बेटा, है ना, ऑफ रेडियस r3. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब एंड 4/3 पाई r3 क्यूब. ओके, अब इसको शॉर्ट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए अपनी कैलकुलेशन को. 4/3 पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से, और वो क्या होगा? कट जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना. कट जाएगा. बचा r की वैल्यू क्या है हमारी? 3 का 27 इज इक्वल टू r1 की वैल्यू है हमारी 1.5 का क्यूब 3.375 प्लस r2 की वैल्यू 2 का क्यूब 8 r3 क्यूब. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 27 equal to 11.375 plus r3 cube. ओके बेटे, नाउ 27 माइनस 3.75, तो 5 10 में से 5 के साथ 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 में से 1 गया 5, 15.625. और ये जो क्यूब, ये जो वैल्यू होती है ना, ये क्यूब होता है आपका 2.5 का. 2.5 ऑप्शन में है हमारा. तो R3 जो होगा वो 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, जिसको भी इसका क्यूब निकालना सीखना हो वो एक बार कमेंट करके मुझे बता दें, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा. ओके, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12. इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फॉर्म करना है आपको, लेकिन कोशिश ये करना है एग्जाम टाइम में आप कितना टाइम बचा सकते हो. हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाना है. ठीक है, now we come to question number 13. Question number 13 says how many meters of cloth जो 5 मीटर वाइड है. अब बात ये आती है
कि वो क्लॉथ किस शेप का है। देखो एक बात है कि क्लॉथ के बारे में ये कह रहा है वो क्लॉथ 5 मीटर वाइड है, आपको उसकी क्या पूछ रहा है, मीटर पूछ रहा है, मीन्स लेंथ पूछ रहा है। इसका मतलब वो जो क्लॉथ है बहुत बड़ा, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है। ये फिगर को पहचानने का तरीका होता है कि फिगर किस शेप में है, उसकी डायमेंशन से आप पता कर सकते हो कि वो फिगर एग्जैक्टली है किस शेप का। ठीक है, तो वो जो क्लॉथ है वो 5 मीटर वाइड है। हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। उस क्लॉथ की मदद से क्या बना रहे हैं हम, एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं। कॉन के फॉर्मूले हम समझ चुके हैं। कॉनिकल टेंट जिसका रेडियस जो है बेस का वो कितना है 7 मीटर, उसकी जो हाइट है वो कितनी है प्यारे बच्चों 24 मीटर। तो अगर हम उस कपड़े से कॉनिकल टेंट बनाएंगे तो हम कोन का सिर्फ कौन सा सरफेस यूज कर रहे हैं। एक टेंट अगर हम कॉनिकल शेप का बनाएं तो हम उस टेंट का सिर्फ कौन सा सरफेस यूज कर रहे हैं, तो आंसर है कर्व सरफेस। ठीक है, तो हम यहां से एक चीज समझ पा रहे हैं कि जो इस कपड़े का जो एरिया यूज हो रहा है वो एरिया एक तरीके से उस कोन के कर्व्ड पार्ट के बराबर नहीं होगा, वही तो यूज हो रहा है। भाई सोचो, मेरे पास अगर एक क्लॉथ है ना, क्लॉथ एक रेक्टेंगल शेप में मान लो, और इससे मैं कोन बना रहा हूँ कॉनिकल टेंट, तो कॉनिकल टेंट का खाली वो कर्व पार्ट यूज होगा। इसका मतलब इस कपड़े का जो एरिया होगा that area is equal to the curved part of that conical tent, which implies कि the area of cloth which is in the shape of a rectangle is equal to the CSA of cone। CSA of cone के लिए हमें L और चाहिए। L का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 625 which is equal to 25 meter। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इज कैपिटल L, दिस इज माय कैपिटल L है ना, कैपिटल L, तो L इंटू बी इज इक्वल टू पाई आर एल। ध्यान दो इसका लेंथ और ये L दोनों अलग अलग है बेटा। दिस कैपिटल L डिनोट्स द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दिस स्मॉल l डिनोट्स द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस L 5। अच्छा सब मीटर में चल रहा है ना, यूनिट हमारी सेम है सबकी। हाँ, तो पाई आर रेडियस है 7 इंटू एल इज 25। फाइंड करते हैं, देखो 7 से 7 गया, 5 से 5 25 110 एंड द वैल्यू ऑफ एल इज 110 मीटर। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 110। तो इसमें हमने एक दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले हमने फिगर को आइडेंटिफाई करा और उस फिगर का यूज कौन सी दूसरी फिगर को बनाने में यूज हुआ है, लेकिन जो दूसरी फिगर है उसमें हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं। देखो इसमें हम बेस यूज नहीं कर सकते हैं, कॉनिकल टेंट का जो उसमें जो टेंट उस कपड़े का जो हम टेंट बनाते हैं उसका बेस थोड़ी नहीं यूज करेंगे। वो तो कपड़े का एक टेंट बनता है जो कर्व पार्ट के लिए यूज होता है। अगर बेस के बारे में इसमें कुछ बोलता तो हम उस कपड़े में फिर टेंट इसका बेस भी यूज करते, क्योंकि बेस के बारे में कुछ बात कही नहीं है तो हम इसके बेस को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ कर्व पार्ट यूज करेंगे। अगर बेस भी बोलता तो मैं इसके कर्व पार्ट में बेस भी ऐड करता, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है। A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Mounted means suppose if I put this if I put this rubber on the top of this chalk box, तो मैं कहूंगा the rubber is mounted means किसी चीज के ऊपर रखना, surmount means भी किसी चीज के ऊपर रखना किसी ऑब्जेक्ट को। A rubber is mounted on the top of the chalk box, और मैं कह सकता हूं this chalk box is surmounted by this rubber।
दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये कह रहा है सॉलिड वुडन टॉय है, सॉलिड, अंदर से हॉलो नहीं है ना। जो मैं वर्ड बता रहा हूँ उसका मतलब समझना ध्यान से। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ, किस शेप में है वो? राइट सर्कुलर कोन। सिर्फ कोन की फॉर्म में नहीं है, अभी और भी मिक्सचर है इसमें। एंड दिस राइट सर्कुलर कोन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर उठा के ऐसे रख दिया है। और ध्यान रहे क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, मींस जैसे इसको पूरा तरीके से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास हेमिस्फीयर है। इस कोन को उठा के मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, है ना। अ कोन इज माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। तो आपको कैसे पता, आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि दोनों का बेस का जो रेडियस है वो सेम है? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह ही नहीं रहा है कि दोनों का रेडियस अलग अलग है। अगर ऐसा होता है ना तो क्वेश्चन में उसकी बात की जाती है। जब ऐसा नहीं होता है तो हम यही अज्यूम करते हैं कि जब इस हेमिस्फीयर के ऊपर इस कोन को ऐसा रखा गया तो इनका दोनों का बेस रेडियस कैसा था प्यारे बच्चों? सेम। ठीक है, ये हिंट होती है क्वेश्चनों में। तो द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 42, 4.2। सब सुनो, अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 4.2 है तो कोन का भी बेस रेडियस 4.2 होगा, मीटर सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस 4.2, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, कभी कभी ये रेडियस किसका काम कर जाती है? हाइट का। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर। तो अगर पूरे टॉय की हाइट 10.2 है और खाली हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट, रेडियस तो है लेकिन किसका काम कर रही है? हाइट का। हाइट हमारी 4.2 है, तो सिर्फ कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी? तो आंसर है आपका वैसा पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें, है ना। अब काम आ गया हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनना आसान है। अब क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। अब आपको ये देखना है कि ये वुडन टॉय जो है किन किन दो चीजों से मिलकर बना है। तो आंसर है वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉयज मेड अप ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा शॉर्ट करो कैलकुलेशन को। अच्छा एक बात बताओगे, क्या ये सॉलिड जो पूरा बना है वो दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बना है? तो आंसर है हाँ। तो क्लास 10th में हम इसी की स्टडी करते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर बाय 3। यहां से क्या बचा है? h प्लस 2 आर पाई इंटू 1/3। रेडियस कितना दे रखा है हमें? 4.2। तो 4.2 इंटू 4.2, h कितना दे रखा है? h मीन द हाइट ऑफ द कोन। 6 प्लस 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 4.2 8.4। नाउ सॉल्व दिस। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें तो 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, तो 44 इंटू 42 अपॉन 10 इंटू 14.4। अब देखो तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके हमें मिलेगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अवर ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है, अगर रेडियस दोनों की अलग अलग होती तो बात क्वेश्चन में करता। अगर नहीं करता है तो हम यही समझते हैं कि दोनों का बेस रेडियस कैसा है हमारा? सेम। दूसरी बात ये, क्वेश्चन आधा पढ़ के मत रह जाना कि
वो सॉलिड सिर्फ कोन से बनना है, नहीं, क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू होता है कि वो सॉलिड हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है तब जाके वो पूरा सॉलिड बना है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।